I belong to a very small village of Assam. The name is Geleki. और फर्स्ट इंटरव्यू में तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था. फर्स्ट आई वेंट टू कोलकाता फॉर कतार Okay. एयरवेज इंटरव्यू एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ. और फिर मैं रिजेक्ट हो गया था, बट मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, बट आई गॉट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स. So और you have the experience of working with international and domestic डोमेस्टिक, airlines. यस, Okay. So you prefer personally the international flights more or the domestic ones? definitely international. International Yeah. flights? And four things are very, very important: your personality, your confidence level, and your English communication and your professional behavior. फीमेल के सपने होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स और लाइक लड़कियों के सपने होते हैं कैबिन क्रू बनना. लड़का कोई कैबिन क्रू बन सकता है ये तो लोग सोचते ही नहीं है. वेलकम टू आवर एविएशन पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं एविएशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस. तो आज हम एक इंस्पायरिंग कैंडिडेट को लेके आए हैं जो कि है आसाम के बहुत ही छोटी सी जगह से, जिनके पास है बहुत सारे इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंसेस हमारे सबके साथ शेयर करने के लिए. तो बात करते हैं विदुर से, और विदुर से जानते हैं कि उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी. Okay, so I started my journey as a ground staff back in 2022, and I worked there for almost 6 months. Then after that, I was trying for cabin crew as well in that time only, and I got to Vistara in 2022 only. Then I left Indigo, and I have worked there in Vistara for almost 2 years. Then, unfortunately, after merger, I have joined Air India. Then I have worked there for like 11 months. Then I left. Now I am working with Finnair. Yes. Okay. So you have the experience of working with international and domestic airlines. Yes. Okay. So you prefer personally the international flights more or the domestic ones? Definitely international. International Yeah. flights? Okay. So currently you're working with the international carrier. Yes. So what is the working difference or the working hour difference in international and domestic skies? Okay. So like there are so many international airline, as you also know that. Like mostly people go Emirates, Etihad, and Qatar Airways. But I have chose something different. That is Finnair, and they have based in Delhi only. You can stay in your own country and you can fly for international airline. And main thing is that we have only 4 flights in a month, and you will get lots of offs. So you can stay in your home with your family. You can spend time with your kids, maybe if you have. Yeah, it's fun and it's amazing. Okay. So what made you think that you want to join Finnair? ओके, एक्चुअली मुझे जब फिनेयर की हायरिंग चल रहा था, सो इन दैट टाइम लाइक ऑन दैट डे स्पेशली आई वाज गोइंग टू दुबई लेओवर, एंड व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग माय फोन ऑन इंस्टाग्राम ओनली, आई गॉट टू नो दैट फिनेयर इज हायरिंग. और उस टाइम में मुझे ये पता नहीं था कि फिनेयर दिल्ली बेस के लिए हायर करते हैं या दिल्ली Okay. बेस के लिए हायर कर Okay. रहे हैं. So in that time only, whenever I see some post about cabin crew interview, I always apply, especially for international airline. And मैंने अप्लाई कर दिया. फिर दुबई पहुंचने के बाद when I like reached my hotel, so one of my colleagues, she was also asking for the same, and उन्होंने मुझे लिंक मांगा, but मैंने उनको लिंक भेजा भी, बट उन्होंने इतना कम टाइम के लिए ये ओपन किया था, मे बी लाइक हार्डली फॉर 4 hours और 5 hours, और उन्होंने बंद कर दिया. Oh. फिर मैं एयर इंडिया में था उस टाइम में. सो आई केम फ्रॉम मेलबर्न लेओवर. ऑन दैट डे ओनली आई हैड माय स्विमिंग टेस्ट. डायरेक्टली आफ्टर फ्लाइट आई वेंट फॉर स्विमिंग टेस्ट. वहाँ पे जाके आई गॉट टू नो दैट दे आर हायरिंग फॉर दिल्ली बेस. Oh. आई वाज थिंकिंग कि मुझे फिनलैंड में जाके वहाँ पे बेस में रहने को मिलेगा, Okay. एंड आई कैन एक्सप्लोर लाइक सो मेनी न्यू प्लेसेस अगेन. But unfortunately, I'm in India right now. Like I can go to my family as well, and also yeah, lots of off again. आपको मैंने बोला ही है कि बहुत ज़्यादा offs मिलते हैं, और साथ में ही like yeah, it's good. You're working for international airline and staying in your own country and also earning good amount. Yes. तो आपका स्विमिंग के बाद भी कोई राउंड था? या स्विमिंग, फर्स्ट डे स्विमिंग हुआ था, 50 मीटर की स्विमिंग, और साथ ही एक सेकेंड राउंड होती है जो आजकल ईआसा, यूरोपियन यूनियन ने बहुत मतलब ये कंपलसरी कर दिया है. सो यू हैव टू फ्लोट इनसाइड द वाटर एंड दे विल थ्रो द लाइव वेस्ट, एंड व्हाइल फ्लोटिंग इनसाइड द वाटर यू नीड टू डॉन योर लाइव वेस्ट एंड स्ट्रैप इट. Okay. फिर उसके बाद हमें बोला गया कि यू विल गेट अ मेल, लाइक इफ वी शॉर्टलिस्टेड Okay. यू,
Then after that, the next day only we have received the mail, and उसके एक दिन के गैप में ही हमारा फाइनल राउंड हुआ था दिल्ली एरो सिटी में। और फर्स्ट हम जाते ही एवरीथिंग लाइक दे मेंशन, लाइक कब ज्वाइनिंग होगी, कब आपकी ट्रेनिंग होगी, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, कहाँ पे आपको स्टे मिलेगा, कब से आप फ्लाइंग स्टार्ट करोगे। नॉर्मली आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो कोई भी एयरलाइन आपको ये सब मेंशन नहीं करते हैं। आपको बहुत टाइम मेल के लिए आपको वेट करना पड़ता है कि मेल आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप कब ज्वाइनिंग होगा, या नहीं भी हो सकता है। So before the interview only they have informed us everything. Then after that हमारा interview only one round. There was only one round PI, और that was like going very smoothly. इतना ज़्यादा अच्छे से गया, like only one person he took my interview, and he is the base manager of Delhi, like Finnair. And he asked me about my experience only, because in that time I was working with domestic airline. एंड ही आस्क्ड मी लाइक आप अगर इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी चीज़ के लिए यू वांट टू लीव योर करेंट जॉब, या एंड सम क्वेश्चंस अबाउट लाइक जो हमारा CRM इश्यूज होते हैं। सो इफ क्रू like they behave like this, then how will you react, and how will you handle the situation? Very like it was very normal question, 5-6 question, and it was for like 20 to 25 minutes, and that's it. एंड उन्होंने बोला कि आप अभी घर जा सकते हो, देन विल सेंड यू अ मेल। फिर मैं जैसे घर पहुंचा, उन्होंने बोला था कि कल हम लोग आपको मेल सेंड कर देंगे, या 2-3 दिन में। बट उसी दिन मेल आ गया था, मैं घर जाके सो रहा था, एंड इन द टाइम ओनली माय फ्रेंड कॉल मी कि या रियली फास्ट। और फिर उसके बाद लाइक उसी दिन 2-3 घंटे के बाद ही हमें पता चल गया था। फिर यहाँ पे मेडिकल हुआ, फिर उसके बाद वीज़ा की प्रोसेस, देन आई वेंट फॉर माय ट्रेनिंग। Yes. So how long was the training? Training only 45 days. 45 days? Yeah. Was it in India या फिर No, बाहर? it was in Finland. Finland. Yeah. Okay. But it was really, really amazing, the training. So, कैसे होते हैं इंडिया में जब हम लोग एज अ कैबिन क्रू ज्वाइन करते हैं, हम ट्रेनिंग के लिए जब जाते हैं, हमें क्या होता है, पूरे फॉर्मल्स में जाना है, टाई लगा के, प्रॉपर ग्रूमिंग। बट यहाँ पे फिनलैंड में आप कैजुअल्स में जा सकते हो, वट एवर यू वांट, यू कैन वेयर एनीथिंग। शूज कुछ भी पहन लो, कोई भी आप अटायर पहन लो, आपकी हिसाब से जा सकते हो। और हम जब ट्रेनिंग में रहते हैं इनसाइड द लाइक ट्रेनिंग हॉल, वहाँ पे आप मतलब खा भी सकते हो, आप फोन भी यूज कर सकते हो, और आप कॉफी भी पी सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। बट मेन थिंग इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन द ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग बहुत हार्ड नहीं था, इट वॉज वेरी ईजी। एंड जैसे कि इंडिया में होता है कि आप ये रूल आप याद करो, वो रूल याद करो, ये पूरा हमें स्टेप बाय स्टेप चाहिए। स्पेशली सेफ्टी में, यू नो, मे बी सेफ्टी कितना हार्ड होता है ट्रेनिंग में। सेफ्टी में आप ये करो, वो करो, दो आर्मिंग दिस आर्मिंग। बट वहाँ पे आप अगर एज पर बुक नहीं भी बोलते हो, जैसे कि आई वॉज इन विस्तारा, एंड विस्तारा वॉज पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, जो भी SOP होते थे, या जब हम लोग ट्रेनिंग में होते थे, जब भी लाइक हमारा वाइवाज होता था, तो वाइवा के टाइम में लाइक दे लाइक वेरी पर्टिकुलर, आपको जो भी सीक्वेंस है और जो भी वर्ड है बोवियस कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आपको सेम टू सेम बोलना है। और बहुत कुछ होता था। बट इन Finnair इट वाज वेरी इजी, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन लाइक प्रैक्टिकल थिंग, आप कैसे आप एक्शन कर रहे हो। हाँ, एंड इट वाज लाइक रियली नाइस और बहुत ज्यादा इजी था। Yes. Okay, so another question कि क्या बेनिफिट्स होते हैं Finnair ज्वाइन करने के लिए अपार्ट फ्रॉम सम अदर एयरलाइन? ओके, तो जैसे कि आप नॉर्मली एज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक एमिरेट्स एतिहाद, तो वहाँ पे आप फ्लाई करोगे, इतनी ज़्यादा आपको लीव्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लाइक स्टेइंग इन इंडिया यू विल डू ओनली 4 फ्लाइट्स, और रेस्ट स्वैप करने की ऑप्शन है। आप अगर फ्रेंड्स के साथ स्वैप करना चाहते हो, स्वैप करके आप फर्स्ट लाइक 10 to 12 डेज या 15 डेज में अगर आप फ्लाइट्स कर लेते हो, बाकी की आपकी सारी छुट्टी हो जाएगी। तो आपको PLs लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है मोस्टली। PLs मतलब आप कभी जरूरत नहीं होते, बाद में वो PLs के भी आपको पैसे आ जाते हैं, कंपनसेशन आ जाते हैं। और साथ में लाइक फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यू विल गेट टू सी लाइक स्नो अराउंड, क्योंकि दिसंबर नवंबर से वहाँ पे स्नो स्टार्ट हो जाता है, और ऑलमोस्ट लाइक फॉर 6 months वहाँ पे स्नो होता है। एंड everywhere wherever you're going, only snow and snow, and you can explore this Santa Claus village, Rovaniemi, Lapland. It's very beautiful. Even you can see the northern lights also. And apart from this, like in flight भी हमारे काम दूसरे एयरलाइन की तरह इतना ज़्यादा काम नहीं है,
because I was working with Air India and Vistara, and I can tell you like how much work I used to do in Air Happy India. country in the world. Yeah. तो मतलब एयर इंडिया में इतने ज्यादा काम होते थे, हम लोग कैबिन में 6 से 7 बार जाते थे. Okay. फर्स्ट लाइक क्योंकि आई यूज्ड टू डू मोस्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो पहले आप बार कार्ड लेके जा रहे हो, उसको ला रहे हो वापस, फिर आप क्लियरेंस के लिए जा रहे हो, फिर आप मील का कार्ड लेके जा रहे हो, फिर मील का क्लियरेंस, फिर टी कॉफी, फिर फाइनल क्लियरेंस. बट फिनएयर में हम लोग हार्डली कैबिन में 1 या 2 बार जाते हैं. 2 सर्विसेज तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में होती है, बिकॉज इट्स अबाउट 9 आवर्स फ्लाइट. और हमारा वी हैव लाइक बोथ बाय ऑन बोर्ड एंड लाइक फुल सर्विस थिंग ऑल्सो. तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है. और मेन थिंग इज दैट ज़्यादातर एयरलाइन में क्या होते हैं, जो अल्कोहल सर्विस होते हैं, दैट इज़ लाइक ऐसा होता है कि थ्रू आउट द फ्लाइट आपको फ्री मिलेगा जितना चाहिए, इकोनॉमी हो, बिजनेस क्लास हो, प्रीमियम इकोनॉमी. फिन एयर में इकोनॉमी में ओनली 1 ड्रिंक इज अलाउड, दैट इज नॉट हार्ड ड्रिंक. सो दैट इज वेरी लाइक ईजी फॉर क्रू. उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो, आपको पैसा पे करने पे, आई नो दैट ये पैसेंजर के लिए थोड़ा नाइंसाफी जैसी होती है, बट इट्स गुड फॉर अस बिकॉज लाइक हमें इतना दौड़ना नहीं पड़ता है. मेन थिंग इज दैट मैं लाइक क्या बोलूँ, आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, बट वी हैव अ वर्क आईफोन जो मैंने अभी मैम को दिया है वीडियो बनाने के लिए. सो उसमें एवरीथिंग इज देयर. आपको कुछ भी सर्कुलर या कुछ जो भी आए, इवन हमारी एयरक्राफ्ट के अंदर आपको कॉल बेल अटेंड करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा. इसमें सिस्टम है, हमारी जो स्क्रीन होते हैं एयरक्राफ्ट में, उसमें से आप ऑर्डर कर सकते हो. सपोज लाइक यू वांट टू हैव टी, यू वांट टू हैव कॉफी, यू वांट टू हैव जूसेस, तो एवरीथिंग यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम देयर. और हमें नोटिफिकेशन अपनी फोन में आ जाती है. तो अकॉर्डिंगली जो भी 5 6 7 सीट से आपको ऑर्डर्स आए, तो हम लेके जाके दे देते हैं, भागना नहीं पड़ता है. ऐसे बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज हैं, अच्छे एडवांटेजेस हैं बीइंग इन फिन है, और ये आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा. यस. सो विदुर, कितनी डिफिकल्ट थी आपके लिए ये जर्नी, क्योंकि आप एक छोटे से टाउन से आते हैं, तो सपोर्टिव थी फैमिली? फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं था स्टार्टिंग में. सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू, सो बिफोर दैट लाइक आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन के बाद हमारे वहाँ पे ऐसे होते हैं कि सरकारी जॉब ही करो, नहीं तो हमारे वहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री की जॉब है, ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी की. तो सबका मम्मी पापा का यही ड्रीम होता है कि आप इसमें जाओ. एंड मेरे फैमिली में किसी का सरकारी नौकरी नहीं था, तो माई पेरेंट्स दे ऑल्सो वांटेड मी टू डू सरकारी जॉब. तो फिर मैं घर से दूर आ गया था, गुवाहाटी. फिर उस टाइम में मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था आफ्टर माई ग्रेजुएशन. जब लॉकडाउन 2.0 हुआ, in that time like there was a guy from Assam only, his name is Bonkim Saikia, and he was working with Qatar Airways. I started making videos on Facebook and Instagram like me, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ उस टाइम में वो बनाते थे. So I used to follow him a lot, like how to become a crew and what to do, what not to do, क्या follow करना है, cabin crew की life कैसे होती है. And I started like preparing by myself. एक मेरे पास डायरी होता था every day अपनी बेड पे, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी सब कुछ मैं नोट करके जाता था. एंड यू वोंट बिलीव दैट आई डिडंट नो अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश इन द टाइम, बिकॉज आई डिड माई स्कूलिंग इन माई ओन लैंग्वेज, Assamese. Yeah. My like 11 12 till 11 12 my medium was like Assamese. Wow. Then after that I did BSc, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब इंग्लिश आ गई थी, बट स्टिल उस हिसाब से नहीं था कि मैं कैबिन क्रू बनूं. देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग एंड एंकरिंग. गुवाहाटी में, असम में, मतलब अच्छे से मैंने 5 years तक मॉडलिंग एंड एंकरिंग किया था, और उस टाइम में मैंने बहुत सीखा. देन आई मेट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम मणिपुर एंड शिलोंग और सिक्किम, दार्जिलिंग, नागालैंड, लाइक वो ऑल आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और मैंने उनसे सुन के सीखना स्टार्ट किया. एंड आई यूज्ड टू टेल देम लाइक कि अगर आप, मेरा कुछ मिस्टेक होता है इंग्लिश में, आप मुझे करेक्ट कर देना. और मेरा भी एक फ्रेंड है, नाउ ही इज वर्किंग विद कतर एयरवेज, एंड ही यूज्ड टू टीच मी अ लॉट. इंडिगो में व्हेन आई वाज वर्किंग विद इंडिगो एज अ ग्राउंड स्टाफ, वी जॉइंड टुगेदर. हिज नेम इज वरुण, and right now he is working in Qatar. So he used to come to my house on a weekend, and we used to prepare, like we used to write question answers for cabin crew, and he used to teach me because his English is very nice, like very fluent. तो वो अच्छे से मुझे सिखाते थे, और उसी तरह से मैंने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया, इंटरव्यू देना स्टार्ट किया. और फर्स्ट इंटरव्यू में तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था. फर्स्ट आई वेंट टू कोलकाता फॉर कतर एयरवेज इंटरव्यू, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ.
और फिर मैं रिजेक्ट हो गया था, बट मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, बट आई गॉट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। और फर्स्ट ही आप ट्राई करके इंटरनेशनल में ही आपको सिलेक्ट होना है, ये भी ऐसा भी नहीं। आई जस्ट वांटेड टू बिकम ए कैबिन क्रू, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे गया विस्तारा का इंटरव्यू देने के, देन अगेन आई गॉट रिजेक्टेड इन सेकेंड राउंड। फिर मैंने अलायंस एयर का इंटरव्यू दिया था 29 ऑफ सितंबर 2022, एंड नेक्स्ट डे आई हैड माय विस्तारा इंटरव्यू, और दोनों में सिलेक्ट हुआ था मैं। ओह यस, आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम माय फेलियर, फेलियर्स कि आपको कैसे खुद को प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। एंड फोर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट: योर पर्सनैलिटी, योर कॉन्फिडेंस लेवल, एंड योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, एंड योर प्रोफेशनल बिहेवियर। मैंने जब इंटरव्यू देना स्टार्ट किया था तब से सीखा कि कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं, कैसे आपको ये कैबिन क्रू इंटरव्यू में आपको इम्प्लीमेंट करना है। एग्जैक्टली Yeah, that's how like today I'm standing here as a cabin crew in front of you. एब्सोल्युटली एज यू मेंशन कि प्रिपरेशन कितनी जरूरी होती है Yes, विदाउट प्रिपरेशन यू आर बाउंड टू फॉल yes, मल्टीपल definitely. टाइम्स Yeah, तो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप बहुत पहले से नोट्स बनाते थे yes, कि ये चीजें रिक्वायर्ड हैं और ये मेरे में होनी चाहिए yeah, और एक वर्ड जो आपने यूज किया इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ओनली ज़्यादा। थ्योरी इज नॉट गोना डू Yeah. यू नो द मैजिक And according to me, like it's not like कि आप मेरे से बड़े हो, मैं आपसे सीख सकता हूँ। अभी आप ना कोई बातें आप छोटे से भी सीख सकते हो, सीख सकते हो बड़े से। like every day is a learning day, लर्निंग and you can learn anything from anyone. मे बी शायद मैं आज आपसे भी कुछ सीख सकता हूँ, आप मेरे से भी कुछ सीख Exactly. सकते हो। द Right. थिंग इज दैट ये आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छे से सीख रहे हो, कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता इम्पॉर्टेंट है। है यस, जैसे मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे आपके स्कूल में आपको बहुत सारे अवार्ड्स देते हैं वो यस। और वहाँ के बच्चों को आप बहुत इंस्पायर करते हैं तो क्या है वो स्टोरी सो लाइक मैंने जब कैबिन क्रू बना था, मेरी जगह से पहले कोई कैबिन क्रू नहीं था। ओह And as you said, I belong to a very small village of Assam, and the name is Geleki. Yeah, so वहाँ पे कोई cabin crew नहीं थे, and ओके especially like फीमेल के सपने होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स और लाइक लड़कियों के सपने होते हैं कैबिन क्रू बनना। लड़का कोई कैबिन क्रू बन सकता है ये तो लोग सोचते पता ही ही नहीं। नहीं था स्पेशली ऐसे छोटे जगह से आप कभी होता ही नहीं कि आप डॉक्टर बनोगे, आप नर्स बनोगे, आप टीचर बनोगे, सरकारी जॉब करोगे। ऐसे ड्रीम देखना मतलब आप ये क्या करेगा आगे जाके। राइट यस, फिर तो मैंने धीरे धीरे जब कैबिन क्रू बनने के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किया, कंटेंट्स बनाना स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, हाँ। फेसबुक, तो ये लोग सपोर्ट करने लगे। लाइक मैं उनको जेन्युइन वे दिखाता हूँ, जेन्युइन वे बोलता हूँ कि मैं कैसे कैबिन क्रू बना, आप कैसे बन सकते कैसे हो। बन सकते हो कोई लाइक आप अगर इंग्लिश नहीं भी जानते हो कोई इश्यू नहीं, आप सीख सकते हो सीख धीरे सकते धीरे। हो और इंटरव्यूज असम में बहुत रेयरली होते हैं। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि आप ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करो, आप जब ग्रेजुएट हो राइट ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करो, आपको स्टाफ ट्रेवल मिलेगी, हाँ जी आप उस स्टाफ ट्रेवल यूज करके आप दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता आके इंटरव्यू दे सकते हो। फिर जब आप कैबिन क्रू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आप छोड़ दो। बट थिंग इज दैट आई नो दैट एक लाइक स्टेप मी, लेना बहुत जो मिडिल क्लास से आते हैं, आप एक फ्लाइट लेके पूरी फेयर पे करके बड़े सिटी आके आप इंटरव्यू नहीं दे सकते नहीं हो। दे सकते हो बट राइट अगर आपको ट्रिक आती है ना कि आप ऐसे ऐसे ज्वाइन करके ऐसे भी जा सकते हो, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। वो चीज़ जब मैंने लोगों को दिखाया कि आप ऐसे कैबिन क्रू बन सकते हो, ये करना है, ऐसे अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो लोग बहुत सपोर्ट करने लगे। तो इसीलिए मैं जब भी अभी आसाम जाता हूँ, तो मुझे बहुत सारे कॉलेज एंड स्कूल इनवाइट करते हैं, उनके बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, बोलने के लिए कि हाउ टू बिकम ए क्रू। एंड इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये रेस्पेक्ट दे रहे हैं बीइंग एज ए क्रू ऑल्सो। क्योंकि जब हम दिल्ली, बॉम्बे में रहते हैं, आई कैन सी दैट हियर लाइक नोबडी वैल्यू ऑफ कैबिन क्रू, बट इन माई प्लेस आई एम लाइक रियली आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू एवरीवन कि मुझे वो लोग सपोर्ट करते हैं। यस, या दैट्स इट। ओके कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन रही है फ्लाइट्स पे या challenging situation like when I was in Vistara and Air India, तो SOPs बहुत होते हैं। एवरी फ्लाइट के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना पड़ता है। व्हेन आई एम इन कैब, जब हम फ्लाइट के लिए जाते हैं, रोज लाइक कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कुछ अपडेट आ रहा है, एवरीथिंग पढ़ के जाओ। और उसके बाद भी ऐसा होता है ना, आप अच्छे से आंसर दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ब्रीफिंग में, और ब्रीफिंग से ही एक ऐसा मतलब आपका ये माहौल माहौल बना दिया जाता है कि
आप फ्लाइट में बहुत सीरियस रहना पड़ता है आपको, लाइक आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू बी लाइक दिस। ऐसा आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी है वो आप नहीं दिखा पाते नहीं हो। दिखा पाए। जो आपके बेस्ट फ्रेंडली नेचर पोटेंशियल। होते हैं, या सपोज लाइक यू आर वेरी गुड टू ह्यूमन, गुड टू पीपल, बट आप वहाँ पे शो नहीं कर सकते हो, वो ह्यूमैनिटी ही आप शो नहीं कर सकते हो। राइट। फिर उसके बाद लाइक समटाइम ऐसा होता है, कोई कोई पर्सन या कोई कोई मतलब हमारे जो सुपरवाइजर होते हैं, वो इतना ज़्यादा बॉसी होते हैं, लाइक आपको ना ऐसे आप इतना काम करने के बाद भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और आप अगर छोटी सी चीज़ भी गलती गलती किया, एक दिन मेरे फ्लाइट में क्या हाईलाइट। हुआ था, हाँ, हाँ। लाइक आई वाज डूइंग समथिंग डोमेस्टिक सेक्टर्स ओनली, और मैं एवरीथिंग मैं बहुत एसओपी फॉलो करता, सब कुछ मैं करता था अच्छे से। देन इन द टाइम ओनली देयर वाज अ पैकेट, किसी ने, जैसे कि हमारे विस्तारा में फुल सबके लिए फुल सर्विस मील्स देते हैं, तो ट्रेज में बन भी होता है, बन का एक पैकेट गिरा हुआ था। सो व्हेन आई वाज क्लियरिंग दैट इट वाज नॉट देयर, बाद में पैसेंजर ने खोल के शायद नीचे गिरा दिया। ओके। सो व्हेन माय आईएफएस शी सॉ दैट एंड शी रिएक्टेड लाइक एनीथिंग, इतना ज़्यादा मेरे पे चिल्लाया कि ये कैसे वहाँ पे हो सकता है, ये क्यों है, तुम L4 हो, आप गैली इंचार्ज हो, आप केबिन के इंचार्ज हो और आप ये नहीं देख रहे हो। एंड इट सो वाज इन द फ्लाइट, ड्यूरिंग in द the फ्लाइट? yeah, in the flight only. So in that time like I was so like angry from inside, but दिखा भी नहीं सकते, तो ऐसे ऐसे कभी सिचुएशन होते हैं। तो मैं बोलता हूँ जो भी सुपरवाइजर हो आप, जो भी क्रू हो, आप अपनी टीम को सपोर्ट करो, बिकॉज यू बिलोंग टू वन टीम। और आपको लास्ट में जाके आफ्टर ऑल लाइक वी ऑल अ कैबिन क्रू, और आप अपनी जो टीम है उनको सपोर्ट नहीं करोगे, उनको सपोर्ट नहीं दिखाओगे, वो भी अच्छे से आपके साथ खुल के काम नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम भी हुआ, पैसेंजर के साथ कुछ इंसिडेंट भी हुआ, आप ऐसी मतलब ऐसे रिपोर्ट लिखोगे, तो उनके लिए ना वो कभी खुल के बोल भी नहीं पाते। बोल भी नहीं पाते। यस, राइट। तो इसलिए आप सपोर्टिव बनो, अपनी टीम को सपोर्ट करो। यस। So Vidar, after becoming a cabin crew, what significantly has changed in your life? इफ आई से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज कैबिन क्रू बनने के बाद मैंने स्पेशली लाइफ में पंक्चुअलिटी सीखा, हाउ यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। और True. बीइंग एज अ क्रू, पंक्चुअल मीन्स इट्स नॉट ऑन टाइम, इट्स बिफोर टाइम, Before time. ऑलवेज बिफोर टाइम। फिर उसके बाद आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मे बी बैक इन 2022 व्हेन आई जॉइंड विस्तारा एज अ कैबिन क्रू, इन दैट टाइम मे बी आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। पैसेंजर जब कुछ चिल्लाते थे, स्पेशली ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट, कोलकाता फ्लाइट, Right. इतना पैसेंजर चिल्लाते थे और हम डर जाते थे। डर आई जाते यूज्ड थे, टू बी right? लाइक, आई रियली apologize for the Really? inconvenience, I'll just get back to you, please try to Happens with every understand। cabin crew. या तो वो चीज़ अभी ऐसे चेंज हो गया ना, नाउ इफ पैसेंजर से एनीथिंग, I can reply him back in a Right. very certain tone, professionally, और उनको ऐसे बोल सकते हैं, वो मान भी जाते हैं। You know how to handle it. How to handle, then after that like और मेरे जो इमोशन है, मे बी स्टार्टिंग पहले मैं बहुत लाइक इमोशन दिखा देता था, शो कर देता था। Manage नहीं कर या पाता। नाउ आई कैन हाइड इट। मैं अगर अंदर से गुस्सा भी हूँ, मैं स्माइल कर सकता हूँ। Right. बट व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग विस्तारा के टाइम में, इन द टाइम लाइक आई यूज्ड टू बी एंग्री बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी, ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, ये ऐसे हाँ। मुझे कैसे बोल सकते छोटी-छोटी हैं, बातों छोटी पे। छोटी बातों पर। बट ये एविएशन ने सिखा दिया, और साथ में आप अपनी जो आपकी लाइफ स्टाइल है, अब वो चेंज हो जाती है, क्योंकि आप वेल ग्रूम होना सीखते हो। Right. रोज जो आप फ्लाइट के लिए जाते हो वेल ग्रूम होके, वो धीरे धीरे आप नॉर्मली अगर कहीं भी जाओगे, वो आपकी लाइफस्टाइल ही बन जाती रहता है, है। क्योंकि लोग के Inbuilt. नजरिया बदल जाते हैं आपको देखने के लिए। Right. सपोज लाइक अगर कुछ चीप कपड़े भी पहन के जाते हो, लोगों का नजरिया ये होता है कि ये ब्रांड पहन के जा रहे हैं, ब्रांडेड कुछ अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, क्योंकि आपको कैरी करना आ जाता है कैरी उनको करना आ जाता है बहुत कि अच्छे हाउ से, टू कैरी योरसेल्फ, कॉन्फिडेंटली। यू विल गेट टू नो आफ्टर बिकमिंग कैबिन क्रू। राइट। साथ में आपकी हेल्थ की ध्यान आप बहुत देते हो। हाँ। कैबिन क्रू आपकी क्योंकि बीएमआई इश्यूज होते हैं, BMI। तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं खाते हो, कुछ भी जंक या कुछ भी, लाइक लोग सोचते होंगे कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके, 5 स्टार होटल्स में जाके कुछ भी खाते हैं, पर हम बहुत हेल्दी रहते हैं, जूस पीते हैं, हम अच्छे से हेल्दी फूड खाते हैं, सैलेड खाते हैं नॉनवेज, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के खा कुछ भी। लेंगे, बहुत लिमिटेड चीज़ में खाते हैं। हम्म। और ये चीज़ें मतलब आपको लाइफ में ना एक ऐसी चीज़ें रियलाइज़ कर देती है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी चलनी चाहिए, और ऐसे एक शेप आपको दे देते हैं अच्छा लाइफ में। तो कैबिन क्रू बनने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी लाइफ, अभी मैं 3-4 साल पहले जो बिदुर था, अभी मैं बहुत सुलझा हुआ बिदुर बन गया। True, true. Yes. That transformation happens with everyone. Yes. So, अगर आप कैबिन क्रू नहीं होते तो क्या होते? कैबिन क्रू नहीं होता तो मैं अभी शायद कोई
मेरे भैया अभी ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं। सरकारी नौकरी। सरकारी नहीं, हमारे वहाँ पे एक ओके, कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी, लाइक ठीक है। अच्छे सैलरी असम में मिलते हैं। ओके, सो पीपल फोकस ऑन दैट जॉब ओनली। ओके, तो मैं भी शायद उनके जैसे अभी धूप में हथौड़ा लेके, एक रेड पूरा डंगरी पहन के, उनके ओके। जैसे धूप में हेलमेट लगा के काम कर रहा होता, क्योंकि मैंने भी वही कोर्स किया था। मैं ये खराब नहीं बोल रहा हूँ कि कोई प्रोफेशन खराब है। आई रेस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन अच्छे हैं। अच्छा। डॉक्टर हो, नर्स हो, कुछ भी जॉब हो। इवन लाइक मेरी मम्मी भी छोटा सा काम करती है, पापा भी करते हैं। तो लाइक मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, बट थिंग इज दैट मैं अगर यहाँ पे नहीं होता, मैं वहाँ पे होता, मुझे भी वो स्ट्रगल करना पड़ता। राइट। लाइफ में आपको स्ट्रगल करना है, कहीं पे भी होंगे आप, बट वही यहाँ पे नहीं होता तो मैं वहाँ पे होता। यस। Okay, thank you so much, Vidar, for sharing such insights and inspiring so many people. And thank you so much. Thank you so much. Means a lot for having me here. Thank you. And I always love to share my journey with my people, especially cabin crew, Yes. experienced cabin crew. और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी आपकी बैरियर नहीं बन सकता, आपकी लैंग्वेज, Hmm. आपकी जो भी कमी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, Right. कभी भी ये आपकी लाइफ की बैरियर नहीं बन सकते। आप फोकस करो अपनी लाइफ में, प्रिपेयर करो और खुद को ऐसे बनाओ परफेक्ट, जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे एज ए कैबिन क्रू। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड योर व्यूअर्स। एंड वही बोलूंगा, जल्दी मिलेंगे फ्लाइट में एज ए कैबिन क्रू, साथ में फ्लाई भी कर सकते हैं। यस। Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो Okay. मच।